हेलो बच्चों, आप हैं अखिल गुरुकुल चैनल पे। मेरा नाम है डॉक्टर अखिलेश्वर सिंह। फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 6 है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। कंटेंट्स है आज के लेक्चर का: एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन, वंडर वाल इक्वेशंस, आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज रखते हैं कब हम लोग कौन से इक्वेशंस का यूज करते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइडियल गैस का इक्वेशन अवेलेबल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं पी वी इक्वल टू एन एन आर बार टी, पी वी इक्वल टू एम आर टी, पी इक्वल टू रो आर टी, या पी पी टू स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू आर। ये चारों इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन है। इक्वेशन कब किसको यूज करेंगे इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडियल गैस के लिए थ्री एजम्पशंस है। वी हैव ऑलवेज कंसीडर थ्री एजम्पशंस फॉर द आइडियल गैस। फर्स्ट एजम्पशन इज molecules have negligible volume. The volume of individual gas molecules should be negligible as compared to the total volume of the gas container. Suppose that this container has ideal gas, so volume of one molecule of the ideal gas is negligible as compared to the total volume of the gas या container. First assumption is that. Second assumption is no intermolecular force between gas molecules. There are no attractive or repulsive force between gas molecules. Third assumption is perfect elastic collisions. When gas molecules collide with each other, yeah, walls of the container, there is no loss of kinetic energy. So these three assumptions are used for the ideal gas equations. Here one, two, three, four. Four form of ideal gas is available. When the moles of the gas is given, so we can use PV equal to N bar RT, where N is the number of mole of in the gas, or R bar is called universal. R bar is called universal gas constant. It has value 8.31 kilojoule per kg mole per Kelvin. Here P is the absolute pressure and T is the absolute temperature. Temperature should always taken in the Kelvin. It is called absolute temperature. So PV equal to N R bar T. Here N is number of mole. So what is number of mole? Number of mole is the mass of the gas divided the molecular weight of the gas. Molecular weight of the gas. So we can replace N equal to M divided by molecular weight into R bar into T. We can arrange like that: M into R bar divided molecular weight into T. Here M, R bar, this term is called gas constant. Here we can see that R bar is called gas constant. It is the ratio of universal gas constant divided the molecular weight. So R is called gas constant.
we can write MRT. This term called is our gas constant. It is the ratio of universal gas constant divided by molecular weight. So it will we can write that PV equal to MRT like that. So whenever uh, whenever the mass of the molecule is given, so we can use PV equal to MRT. When the mole of the gas is given, we can use the PV equal to N R bar T. Suppose the density is given, so here PV equal to MRT. So P equal to MRT divided by volume. If we can arrange that, M into V R T. So M, the density of gas is the mass of the gas divided by volume. So it is the called density. So we can write that rho equal to RT. So we can see here P equal to rho RT. So whenever density is given, we can use the P equal to rho RT. Here fourth form is P into a specific volume equal to RT. Here PV equal to MRT. So P V divided by mass of the gas equal to RT. P into volume by mass equal to RT. Here P equal to a specific volume to RT. Volume divided by mass is called a specific volume. So we can write that P into a specific volume equal to RT, this equation. स्पेसिफिक वॉल्यूम जब दिया रहेगा P इंटू स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू RT फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं. ये चारों इक्वेशन किसका है? जो इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है. यदि कोई भी गैस ये चारों इक्वेशन को फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? आइडियल गैस बोलते हैं. Here you can see that specific volume equal volume divided by mass. So we can take the snapshot of this slide क्योंकि सब फॉर्मेट लिखा हुआ है और आइडियल गैस के और अदर रिलेशनशिप, अदर 3 रिलेशनशिप ये है जो इसमें यूज करके एक दूसरे में कन्वर्ट कर देते हैं. और जितने यहाँ वेरिएबल है ऑलरेडी सारे वेरिएबल डिफाइन है, तो आप स्नैपशॉट ले सकते हैं. एक बार इसको रीड आउट कर लीजिए. चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. स्नैपशॉट ले लिया आपने. अब देखिए वंडर वाल्स इक्वेशन. व्हेन द वंडर वाल्स इक्वेशन इज यूज फॉर रियल गैस, तो अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगा. यदि आइडियल गैस नहीं है, रियल गैस है, तो वंडर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करता है. वंडर वाल्स ने किया जो मेजर जजम्पशन था, इंटरमोलिकुलर फोर्स आइडियल गैस में नहीं कंसीडर किया गया था एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को क्या निगलेक्ट किया गया था. बट वंडर वाल्स ने इंटरमोलिकुलर फोर्स को कंसीडर किया एज वेल एज सिंगल मॉलिक्यूल के भी वॉल्यूम को कंसीडर किया. उसके बाद उन्होंने एक इक्वेशन डेवलप किया जिसको बोलते हैं अंडरवाल्स. तो ये अंडरवाल्स इक्वेशन क्या होता है? P प्लस A बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस वी इक्वल टू आर. V is the molar volume. The term
ए डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इज काउंट फॉर द इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो ये जो टर्म है इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंड वी अकाउंट फॉर द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय द गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होता है वी उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको याद रखिएगा। एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर रियल गैस बिहेव लाइक आइडियल गैस। जब लो प्रेशर होगा, हाई टेम्परेचर होगा, तो रियल गैस आइडियल गैस की तरह इस कंडीशन में बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए, अगर प्रेशर लो है तो वॉल्यूम क्या होगा, सॉरी वॉल्यूम क्या होगा, हाई, बहुत हाई होगा। तो ये जो टर्म वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा तो ये टर्म क्या होगा, अप्रोक्सीमेट जीरो के पास चला जाएगा। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इसमें से भी कुछ अगर निगलेक्ट कर लेंगे बहुत ज़्यादा में से, फिर भी ये वी के ही तरह बिहेव करेगा। तो ये जो ओवरऑल जो है पी वी इक्वल टू आर टी की तरह बिहेव करेगा, आइडियल गैस की तरह ही बिहेव करेगा जब लो प्रेशर होगा एंड हाई टेम्परेचर होगा। देखिए आइडियल गैस का कुछ रिलेशनशिप है जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। टेबल जो मेयर फॉर्मूला होता है, मेयर फॉर्मूला Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। Cp क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर। और एंड एक गामा है जिसको ऑलरेडी हम लोग एडियाबैटिक में देखते हैं, जिसका 1.4 आता है। तो गामा को डिफाइन किया है Cp डिवाइडेड बाई Cv। गामा हमेशा ग्रेटर देन 1 ही होता है। एंड Cp के लिए रिलेशनशिप है गामा इंटू आर डिवाइडेड गामा माइनस 1, एंड Cv के लिए आर डिवाइडेड गामा माइनस 1। इसको आपको याद रखना है, नहीं तो एक इक्वेशन और एक इक्वेशन यूज कर लेंगे दोनों तो एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और आइडियल गैस के लिए जो इंथैल्पी होता है बाद में बात करेंगे, हमेशा टेम्परेचर का फंक्शन होता है, आपको याद करना है, बाद में हम लोग इसको डिराइव करेंगे। इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस का हमेशा टेम्परेचर का फंक्शन होता है। एयर हमारा आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। एयर के कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना होता है, कभी कभी एग्जाम में दिया रहता है, नहीं तो कभी कभी आपको याद रखना है कि देखिए एयर के लिए गैस कंस्टेंट की वैल्यू होती है 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। मॉलिकुलर वेट होता है एयर का 2 नहीं, तो यहाँ से देख सकते हैं गैस, अगर आर गैस कांस्टेंट निकालना है एयर के लिए, देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। सो गैस कांस्टेंट फॉर एयर अगर निकालना है तो क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या था हमारे पास, 8.31 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर क्या है 29, तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो अलग अलग गैस के लिए ये अलग अलग होगा, ये भी हाइड्रोजन होगा तो अलग होगा, हीलियम होगा तो अलग होगा, अलग अलग नाइट्रोजन होगा तो अलग होगा। क्या करना है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देना है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना है, तो हाइड्रोजन के लिए गैस कांस्टेंट निकल जाएगा, नाइट्रोजन के लिए गैस कांस्टेंट निकल जाएगा। और इसमें जो पीवी इक्वल टू एम आर टी यूज कर लेंगे गैस कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर गैस के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट चैनल पे जो भी वीडियो लेटेस्ट आते रहेंगे आपको मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों का शेयर कीजिए जिससे उनको भी प्रॉफिट मिले। थैंक यू, जय हिंद।